Hello students, welcome back to Tuition Masters. And today we are here with doing a maths additional sample paper, and this is our part 2 जहाँ पे हम section C and section D को discuss करने वाले हैं. In the last session we had discussed about the section A and section B. So today we are going to discuss section C also. So section C और D are discuss करने वाले हैं. So make sure to like this video, share it with your friends and subscribe to channel right away. So let us start. Before starting, as you know, हमने सेक्शन ए कंप्लीट कर दिया, बी कंप्लीट कर दिया. सेक्शन सी और डी में क्या है? सी में हमारे पास 3 मार्कर क्वेश्चन थे और डी में वी हैव द 5 मार्कर क्वेश्चन. सो आज हम 3 और 5 मार्कर क्वेश्चन करने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होंगे. सो यस, लेट अस स्टार्ट डूइंग. सो स्टार्टिंग में सेक्शन सी 6 क्वेश्चन है, 3 मार्क्स ईच एंड थोड़े एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी दिए गए लाइक और क्वेश्चन है. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट एज वेल. So question number 26 says the LCM of 6 raised to 4 8 square and k is 12 raised to 4, where k is positive. Find the smallest value of k and show your steps. See, अभी आपको ये LCM दे रहे हैं, इनको नॉर्मल फॉर्म में लिखते हैं, इजी फॉर्म में लिखते हैं. Let's say 6 raised to 4 can be written as 2 into 3 whole raised to 4. Now, this identity we can write it as 2 raised to 4 into 3 raised to 4. Correct? Now, similarly 8 square को हम लिख सकते हैं 2 cube जो होता है 8 और उसका whole square. That becomes 2 raised to 6. अब k will be equals to what? K into 1 एक smallest positive integer है. Correct? तो k into 1 ले लेते हैं. K ही बनेगा वो. Correct? Now, LCM is given 12 raised to 4 है. 12 raised to 4 हम लिख सकते हैं 2 into 2 4 और 2 into 2 4 into 3 12 whole raised to 4. That means 2 square into 3 raised to 4. Okay, if you calculate further, what will you get? We'll get it as 2 raised to 8 into 3 raised to 4. ठीक है, ये मिल गया. अब 3 raised to 4 तो होगा नहीं क्योंकि we need the smallest value. So means we can take 2 raised to 8, that is nothing but 256. So that becomes the smallest value. ठीक है, so 256 is your answer. Question number 27. If m and n are zeros of this polynomial, find the values of the following without factorizing the polynomial. Polynomial को factorize नहीं करना पर हमको निकालने हैं values उसके. ठीक है, तो बिना factorization के करेंगे. Let us add them. इनका LCM लोगे, what will you get? M plus n divided by mn. That's what you will get. Correct? अब देखो, if we check m plus n will give us what? M plus n should give us minus of minus 1 by 3. Correct? That's nothing but positive 1 by 3. Correct? And mn will give us what? Minus 2 by 3. That is nothing but 1 by 3 whole divided by 2 by 3. So if we divide both of them, we will get it as 1 by 2. Correct? So पहले क्या लोगे? How will you find out what is MMN? ये कहाँ से मिला? You can factorize the polynomial. Okay? Okay, not factorizing, sorry. Values 1 and 3 we are taking, cross multiply and MN and that we are taking. Okay. Now look at the second question. Question number 2 says m square plus n square. A plus m square plus n square. We can write it in the form of m plus n whole square. Correct? What is that? That is nothing but a square plus b square plus 2ab. Correct? This we can get. So, if we write it m plus n whole square minus करेंगे 2mn से, क्या can we say we will get m square plus n square? हाँ, हमको मिल जाएगा. अब m plus n हमको पता है 1/3, so 1/3 का whole square minus 2mn. mn क्या है? 1/2. So let us say it will be minus 2 itself minus 2/3. Correct? So if we simplify it further, what we'll get? We'll get 1/9 plus 4/3 is equals to LCM no 1/12/9. That gives us 13/9. So 13/9 will be your second answer. Okay. So this question is done. Let's move to the next question. Graph of a line represented by ax plus y plus 8 is shown. We have to find the value of a and find the point of intersection. Okay. Of the equation 4x minus 3y minus 14 equals to 0. For that, we have to find the intersection point. देखो, let us say this point is P.
ये जो इंटरसेक्शन वाला पॉइंट है, कैन यू सी केयरफुली, वो कुछ नहीं है, वो एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है एंड इट इज लाइक एक कदम पीछे है 5, so it will be 4,0, correct? It will be 4,0, correct? 4,0 it will be, right? So first one we have to find the value of a. A का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ये इंटरसेक्शन हो रहा है. So let us put the value of a in this equation. What we will get? A, x का कोऑर्डिनेट है 4 प्लस y है 0 प्लस 8. इट शुड गिव मी 0. सो a क्या होगा? A will be nothing but सारा उधर लेके सब्ट्रैक्ट ऐड करो, you will get it at -2. So a becomes -2. A की वैल्यू मिल गई. अब सेकंड क्वेश्चन कहता है we have to find the point of intersection of this thing. If we use the same which we used above, ax plus y plus 8, so -2x plus y plus 8 will also be equal to 0 if we simplify it further, right? So let's say this is our equation number 1. So 4x minus 3y minus 14 equals to 0 we have, correct? That is our equation. Let me check one more slide here. Huh. So we can say that minus 4x plus 2y plus 16 and minus y plus 2 minus 0. If we add both of them, what will we get? We get that y will be equals to 2. If y is equals to 2, so we can write that 2x plus 2 plus 8 कितना है हमारा 0. So 2x plus 10 is equals to 0. So y की x की वैल्यू हो गई 5. So x 5 है, y 2 है, means the coordinate is 5 comma 2. So 5 comma 2 is the point of intersection. Okay. Now, let's move to the next one. This is the or question. पिछला वाला कर सकते हैं और you can do this one. Anuj and Safina started a new game on shooting bowling. ठीक है. अब देखो ये पैक है, ये shooting bowling का प्राइस है राउंड्स कितने और ये प्राइस है टैक्स को इंक्लूड करके. ठीक है. इफ यू सी सोलो और कॉम्बो, उसमें आपका प्राइस का डिफरेंस दिख रहा है. ओके. शूटिंग सेम है, बोथ द कॉम्बोज एंड प्राइस ऑफ बॉलिंग इज द सेम इन दी बोथ द कॉम्बोज. ठीक है. अब हमको फाइंड आउट करना है कि हाउ मच मोर इज द प्राइस फॉर वन राउंड ऑफ बॉलिंग इन सोलो पैक. बॉलिंग का एक राउंड में सोलो पैक और कॉम्बो पैक में कितना प्राइस वेरी करता है. ओके, दैट वी हैव टू फाइंड. सो वेरिएबल्स लेते हैं. Let us consider variables. Let us say that shooting है x, shooting है x रुपीस, bowling है y रुपीस. ठीक है. ये हमने ले लिया. अब देखो, what we have to find is, okay, sorry for the disturbance. Yes, so x rupees, y rupees we have taken. Now let us say that what is it given? The price is same in both the combos and the price of bowling is the same in both the combos. ठीक है. सो दैट इज गिवन टू अस. दैट मीन्स हमको कॉम्बो वन को देखते हैं हम. व्हाट इज दिस गिवन? 3 राउंड्स ऑफ शूटिंग, दैट इज 3x प्लस 2 राउंड्स ऑफ बॉलिंग, 2y, correct, minus 285, correct. This is our combo 1, correct. Now combo 2, 4x plus 5y is equals to 485, sorry not minus, equals to. ठीक है. So this becomes your combo 2, करेक्ट. अगर इफ वी मल्टीप्लाई 5 5 दोनों में हम मल्टीप्लाई करते हैं, सो व्हाट कैन वी गेट? इफ वी मल्टीप्लाई 5 इन बोथ ऑफ देम, कैन वी से दैट 15x plus 10y will be equals to 1425, करेक्ट. लेट्स से इक्वेशन नंबर 1 है. दूसरे में मल्टीप्लाई करेंगे सो 8x plus 10y is equals to 970, करेक्ट. इक्वेशन नंबर 2. ठीक है. दोनों को ऐड सब्ट्रैक्ट करो, सब्स्टिट्यूशन करो. व्हाट विल यू गेट? यू विल गेट इट एज 7x इज इक्वल्स टू, ये कट जाएगा, will be equals to 455. So what will the value of x? X will be equals to 65. If it is 65, let us put in the equation 3 into 65 प्लस 2y is equals to 285. हमने पहले इक्वेशन में ढूंढा था, राइट. सो y will be equals to 45 फ्रॉम हियर. सो x मिल गया 65, y मिल गया 45. सो डिफरेंस कितना होगा? 60 minus 45, that is nothing but 15. So 15 rupees का difference है in both of them. Okay. Now look over here. Next question. Question number 29 says that
A circle and two congruent squares are there. ST, SU, UT are tangents of the circle. Side length of the square is 10 centimeter. 10 centimeter as side length. Okay. Now we have to find the radius of the circle. ये NV या तो फिर WN ये हमको ढूंढना है. Okay. Now consider एक एंगल 90 डिग्री है. ये दोनों रेडियस है. WN रेडियस है. वो दूसरा एंड कैन वी से दिस विल आल्सो बी अ स्क्वायर. स्क्वायर रेक्टेंगल बन जाएगा है ना. सो दिस आल्सो विल बी 90 डिग्री. करेक्ट. 90 डिग्री बन जाएगा. Isn't it? And now we can say that UTRU जो है वो tangents है. Okay, so let us consider WU as a radius. WU को हम R consider कर लेते हैं. Okay, so if WB is R, what can I say about SW? SW will be equals to 20 minus R because ये भी 10 है, ये भी 10 है. Total SU will be 20. So SW, if you want to find out, will be 20 minus R. So SY, SY, if I'm talking about SY till here, SY will also be equals to 20 minus R because they are the tangents. SU, SY tangents है circle के, right? If they are the tangents, that means उन दोनों का same length होगा, correct? So we can say that YT will be equals to VT और दोनों होंगे 10. कैसे? Tangents है इस वजह से, right? So we can say that SUT is a right angled triangle. Triangle SUT किधर है हमारा? ये देखो. I'll highlight it S U. Oh, sorry, not even down. Oh, this triangle S U T. ये हमारा एक right angled triangle बनता है. If it's right angled, we can say that. Let me solve it here. We can say that the side length of SU is equals to 20 and UT कितना है? UT is equals to हाँ UT is equals to 10. Correct? So SC कितना होगा? Use the Pythagoras theorem. It will be somewhere around 20 root. 20 का square plus 10 का square will give you 500. Whole root, that is nothing but 10 root 5. 10 root 5 मिला. Now, ST is nothing but हमने क्या calculate किया था ST की value? ST is nothing but we can take it as 20 minus R in plus 10 minus R. Why? Because if we look over here, ST, this whole length of ST, the diagonal of the rectangle is nothing but SY plus YT. So 20 minus R plus 10 R will give us the value of 10 minus R will give us the value. Correct. So if we calculate this further, we will get it as 30. This whole value will be equals to 10 root 5. So 30 minus 2R is equals to 10 root 5. And similarly, radius R will be equals to 15 minus 5 root 5 centimeters. So that is the length of the radius. ओके सो वी गॉट दिस आंसर. अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है और क्वेश्चन है. ओके अब देखो M and are the centers of two semicircle having radii of 9 centimeter and 16 centimeter respectively. M और N सेंटर है दो सेमीसर्कल के. इसका एक का रेडियस है 9, एक का रेडियस है 16. ओके. एस टी एक कॉमन टैंजेंट है. हमको ये पी क्यू की लेंथ निकालनी है और रफ डायग्राम ड्रॉ करना है. Here I'm drawing on the figure itself. No need for wasting extra space and time. But in your board exam, you have to draw it. Okay. तो अब देखो. Let us draw. P M को कनेक्ट कर देते हैं. Q N को भी कनेक्ट कर देते हैं. Now, if you look, can you see it is becoming a rectangular shape? एक रेक्टेंगल जैसा दिख रहा है, राइट? सो सो ये पी एम क्यू एन एक रेक्टेंगल दिख रहा है, करेक्ट? वी कैन से दैट ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, करेक्ट? इफ इट इज 90 डिग्री वी नो दैट पी क्यू is parallel to MN. If it a parallelogram बन गया, that means angle Q or angle Q comma, let's say this is Q and this point of intersection is QI. So we can cut it in the middle. Wait one second.
Okay, so this is the exact figure we have to make a rectangle. I took a little bit down half. So this is the parallelogram. एक Q point ले रहे हैं, Q, let's say Q1 है वो ठीक है. So we have given that PQ is parallel to MN. PQ parallel है so angle Q is equals to angle Q1 because why? Because they both are 90 degrees, correct? और अगर दोनों को add करेंगे angle Q plus angle Q1 will give me 180 degrees, correct? दोनों 180 डिग्री देंगे मुझे, isn't it? So angle Q1 भी 90 डिग्री है, हमने प्रूफ कर दिया. Now let us say in triangle MQ1N, this triangle, this below wala triangle, if we consider that triangle, can we say that side Q1N will be equals to 16 minus 9, that is 7 centimeter. Correct. This part will be 16 minus 9. Radius को subtract करेंगे 7 मिलेगा. Correct. And similarly, MQ1 will be equals to 25 का square minus 7 का square. That gives us 24. Correct. 24 और हमको क्या ढूंढना था? Find the length of PQ. अब MQ parallel है PQ के दोनों equal है because it's a rectangle. So MQ1 will be equals to PQ. Therefore, PQ is equals to 24 units. No, sorry, centimeter. Okay, so that's how you will solve. Now let's move to the next letter. छोटा सा क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री का, बस सबको अलग अलग कर देना. That's it. Prove that this is equal to this. पहले LHS ले लो. LHS और RHS. पहले LHS को हम सॉल्व करेंगे. LHS को सॉल्व करेंगे so it becomes very easy. Okay. So let me erase this. अब लिखते हैं हम LHS को सॉल्व करते हैं. LHS क्या है? I'll quickly write the no need to write, it's given. And what is it? It is cos raised to 4x minus sin raised to 4x by 1 minus tan x. सबको दो सेम पावर में कन्वर्ट करते हैं. कैन वी से दैट cos x होल raised to 2 वो 4 बन जाएगा, करेक्ट? माइनस sin स्क्वायर x whole raised to 2, correct? Can we write that? Divided by 1 minus tan x. Tan को लिख सकते हैं sin by cos, so 1 minus sin x by cos x, correct? अब देखो a square minus b square, you can see that वो a square minus b square है. So a square minus b square is nothing but a plus b into a minus b. So if we write it further, what I'll quickly write the equation and show you. अब देखो, what can you see? A square, this part. This part a square and sine square. A square minus b square I've written in the form of a plus b into a minus b. And denominator में हमने same numerator कर दिया. So this is what we are getting. Correct? अब इसको further solve करेंगे. What can we get? एक ये पूरा एक part बन गया. So if we solve it further, we will get this as cos x minus sin x multiplied by cos x प्लस sin x, करेक्ट? दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया इनटू cos x मिलेगा हमको एंड होल डिवाइडेड बाय, अगर इस cos x को हमने ऊपर ले लिया, राइट? सो दिस विल बिकम cos x माइनस sin x. cos x माइनस sin x बन गया, sin गया, करेक्ट? दोनों sin कट गए. क्या व्हाट डू वी गेट हियर? वी विल गेट इट एज cos x प्लस sin x होल मल्टीप्लाइड बाय cos x, इतना मिलेगा हमको, करेक्ट? अब इसको इधर ही रहने दो. लेट अस सॉल्व आरएचएस नाउ. अब ये आरएचएस को सॉल्व करते हैं. ओके, आरएचएस इज दैट cos cot x plus 1 by sec x cosec x. सो सबको कन्वर्ट करो. cot क्या लिखेंगे? cot सबको कन्वर्ट करके आई शो यू. So here, cot can be written by cos by sin. Sec लिख देंगे cos का reciprocal, sin लिख देंगे cosec का reciprocal. Correct? This is what getting. So let's take the terms ऊपर नीचे. उनको ऊपर नीचे लेके what will get? Cos x plus sin x divided by sin x, उसको कॉमन ले लिया हमने, करेक्ट? एंड दिस होल डिवाइड बाय, इसको सॉल्व कर लिया ऊपर का न्यूमरेटर हमने. एंड बिलो व्हाट विल गेट? वी विल गेट इट एज 1 होल डिवाइडेड बाय cos x sin x, करेक्ट? cos x sin x मिलेगा, करेक्ट? एक साइन डिनोमिनेटर में, एक साइन ऊपर है, साइन साइन कट गया. व्हाट वी आर गेटिंग एज cos x प्लस sin x, वो तो है ही है. ये cos x बचा, उसको भी ऊपर ले लो,
सो इनटू cos x you're getting, अब देखो cos x plus sin x into cos x, इसमें भी वही मिल रहा, so hence prove that LHS is equals to RHS, हमने प्रूव कर दिया. ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अब ये प्रोबेबिलिटी के ऊपर बेस्ड है. एक डार्ट बोर्ड है, सेक्शंस लिखे हुए हैं 1 to 12 लिखा, प्लेयर्स को प्रिडिक्ट करना है. तीन है, आर्या, बशीर एंड कैथी. आर्या says that dart will land on a composite number. Bashir says on a even number. Kathy says on a factor of 12. अब हमको इन सबकी probabilities निकालनी. Okay, let's a little bit lengthy question, but if you understand, you'll get it. ठीक है? So चलो एक टेबल बनाएंगे हम. ठीक है, टेबल बनाते हैं of these numbers जो आउट में है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 10 11 12 जो अंदर के, उन दोनों के बनाते हैं, राइट. सो इफ यू लुक ओवर हियर, सेपरेट लिखते हैं. टॉकिंग अबाउट आर्या फर्स्ट. आर्या सेज दैट उसका नंबर एक कॉम्पोजिट पे आएगा, कोई भी कॉम्पोजिट पे आएगा. लेट अस से हम लोग अपना एक ग्रुप बनाएंगे. ए पे लेट्स से दिस इज आर A2, दिस इज A1. A1 में हमारे पास कितने हैं कॉम्पोजिट नंबर्स. कॉम्पोजिट नंबर्स कौन से हमारे पास है 4 6 8. ये हमारा A1 से, ठीक है, बाहर वाले से ये है 4 6 8. अब अंदर वाले में कितने हैं 9 10 और 12. अंदर वाले में से A2 में से, करेक्ट. तो मतलब पहले तो उसका हाफ हो गया, द स्क्वायर इज हाफ. ओके, स्क्वायर इज हाफ. सो 1/2 into टोटल कितना 3 है. The 3 is the probability divided by total outcomes are 8, so that will give us nothing but 3 into, sorry, that will give us 3 by 16, correct. 3 by 16 इधर का मिल गया A1 का. अब नेक्स्ट, let us say about the next part. सो सी आई हैव मेड अ रिवाइज टेबल जो अच्छा लिखे. A1 जो है हमारा बाहर का है, A2 हमारा अंदर का, ठीक है. 9 10 12 है. अब देखो उसके पहले तो आधा ऑलरेडी हो चुका है, स्क्वायर पूरा स्क्वायर आधा बढ़ गया है ना. सो हाफ इनटू, अब टोटल कितने 4 है 4. हम कितने ले सकते हैं, फेवरेबल है 3. सो आंसर बिकम्स 3/8. सो अब टोटल कैलकुलेट करते हैं. 3/16 प्लस 3/8 करेंगे हम. एलसीएम लो, you'll get it as 9/16. So 9/16 है probability for आर्या. ठीक है, ऐसे में हम बशीर के लिए कैलकुलेट करते हैं ना. See this. I'll quickly draw the table. तो देखो बशीर क्या बोलता है, डार्ट विल लैंड ऑन इवन नंबर. ठीक है, इवन नंबर. तो पहले कितने हैं 1 to 6 है ना A1 में. सो कितने निकलेंगे उसमें से 1 to 6 है, करेक्ट. सॉरी 1 to 8 है. सो क्या निकलेंगे 2 6 8 फेवरेबल है. A2 में कितने हैं 9 to 12 है. सो उसमें इवन कितने हैं 10 और 12 है, करेक्ट. अब देखो, लेट्स फाइंड द प्रोबेबिलिटी. पहला तो हाफ से मल्टीप्लाई करने, क्योंकि स्क्वायर ऑलरेडी आधा हो चुका है. हमारे पास टोटल 8 नंबर्स है. ओके, 8 टोटल है, प्लस हमारे पास कितने अभी 4. दैट गिव्स यू 4/16. ठीक है, 4/16 मिल गया. दैट यू कैन सिंप्लीफाई राइट इट एज 1/4. ठीक है, अब दूसरे का देखो. 1/2, टोटल 4 है हमारे और 2 हमारे पास है. फेवरेबल इज टू डिवाइड बाय 4. दैट गिव्स यू 2/8. That is nothing but 1/4 again. ठीक है, 1/4 मिला. सो बशीर का टोटल कितना होगा 1/4 प्लस 1/4, राइट. So 1/4. So the total outcome will become 1/4 plus 1/4. That becomes 2/4. So Bashir का है 2/4. अब next is Kathy, correct? हाँ. So Kathy कहती है कि the dart will land on a factor of 12. ठीक है, factor of 12 पे again I'll draw the table. ओके, सो हमको फाइंड आउट करना है अ फैक्टर ऑफ 12, है ना. 12 का फैक्टर है. सो 1 to 8 में 1 2 3 and 1 2 3 and अच्छा 12 का फैक्टर है. सो 1 2 3 4 and 6 फैक्टर्स है, करेक्ट. सो इफ वी राइट इट, हमारे फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं. फेवरेबल इज 1 2 3 4 and 6. A2 में कितने होंगे, बस 12 ही होगा, करेक्ट. सो अब देखते हैं. हाफ मल्टीप्लाइड बाय 1 2 3 4 5. 5 है डिवाइडेड बाय टोटल कितने हैं 8. दैट गिव्स अस 5/16. ओके, 5/16. और दूसरे में देखो, हाफ इनटू हमारा एक ही फेवरेबल है डिवाइड बाय टोटल है 4. सो इट गिव्स अस 1/8. सो देयरफॉर टोटल कितना बनेगा 5/16 प्लस 1/8. कितना मिलता है हमको, कैलकुलेटेड, यू विल गेट इट एज 7/16.
7/16 will be your probability. So इन सबकी probability इतनी है. Okay. Now let's move ahead to the next question. Section D. अच्छा question D. Section D पे जा रहे हैं. 4 questions है 5 marks के. Now questions is just सेजल ने एक business start किया. She made 12,000 in her first month. ठीक है. So let us say फर्स्ट मंथ का लिखते हैं. ओके लेट्स रीड द क्वेश्चन. रुको. फर्स्ट मंथ में इतना बना. सेकंड मंथ में शी डिक्रीज द प्राइस. प्रोडक्ट का प्राइस 20 डिक्रीज कर दिया और 40 मोर आइटम्स किए और उसका टोटल सेल बना 2000. अब उसने किस प्राइस पे इयररिंग सेल की दैट वी हैव टू शो. लेट अस से कि जो आइटम्स है दैट इज एक्स, हमको पता नहीं है, और प्राइस जो है दैट इज वाई. ठीक है. सो y कितना दिया है हमको. y इज नथिंग बट 12,000 डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ आइटम्स सोल्ड. ठीक है. ये y हो गया. टोटल कितना होगा. टोटल होगा जितने आइटम्स बेचे मल्टीप्लाइड बाय द प्राइस एक्स वाई. सो देयरफॉर वी कैन से दैट 12,000 इज इक्वल्स टू एक्स वाई. करेक्ट. सिमिलरली सेकंड मंथ में प्राइस कितना था. उसने बोला प्राइस उसने डिक्रीज कर दिया बाय 20. करेक्ट. प्राइस डिक्रीज कर दिया बाय 20 और आइटम्स इंक्रीज कर दिए बाय 40. करेक्ट. x प्लस 40. ओके. सो टोटल कितना मिलेगा. y माइनस 20 इंटू एक्स प्लस 40 दैट गिव्स अस 1000, सॉरी 14,000. टोटल इंक्रीज 2000 बढ़ गई ना. सो 12,000 प्लस 2000 14,000. ओके. अब देखो सिंप्लीफाइड और y की वैल्यू हमने ढूंढी थी 12,000 बाय x माइनस 20 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 40. करेक्ट. x प्लस 40 इज इक्वल्स टू 14,000. करेक्ट. इसको सिंप्लीफाई करोगे व्हाट विल यू गेट. आई क्विकली राइट द सिंप्लीफाइड फॉर्म हियर. सो योर इफ यू सी हम एलसीएम ले लेंगे. पहले एलसीएम लेके एक्स की जो वैल्यू मिलेगी हम उधर दूसरे साइड पे भेज देंगे. इफ यू सेंड इट ऑन द दूसरा साइड सो इट विल बी इजियर टू कैलकुलेट. अब हम जाते हैं इसके फर्दर कैलकुलेशंस पे. ओके. अब देखो नेक्स्ट ऑप्शन विल बी 12,000 एक्स प्लस 48,000. Correct. 48,000 will minus 20x square minus 800x will be equals to 14,000x. ओके. हमने इस पूरे चीज को फर्दर सिंप्लीफाई कर दिया है. ओके. सो 14,000x will get. I'll quickly write the steps. Simple इसको factorize करना है that you guys can do it on your own. ठीक है. So I'll quickly factorize and show you how do we get it. सो देखो व्हाट वी हैव डन इज नथिंग एक्स्ट्रा. हमने बस उस पूरे चीज को सॉल्व कर दिया है. कॉमन ले ली चीजें एंड डिड. इफ यू कैन अंडरस्टैंड यू कैन पॉज द वीडियो एंड लुक एट दिस. जस्ट सिंपलीफाई किया नथिंग एल्स. सो फाइनल फैक्टर्स मिल रहे x माइनस 1000 और x माइनस 240. अब देखो नंबर ऑफ आइटम्स कैसे लिखेंगे हम. नंबर ऑफ आइटम्स इट विल बी इज माइनस 0 इक्वल्स टू 0 कर देंगे. सो x विल बी इक्वल्स टू 100. करेक्ट. x 100 होगा नंबर ऑफ आइटम्स और y की वैल्यू कितनी होगी. y will be 12,000 divided by 100. दो जीरो कटे we will get it as 120. 120 प्राइस. और सेकंड मंथ में कितना होगा. एक्स्ट्रा स्लाइड. ओके. सेकंड मंथ का कैलकुलेट करें. इट वाज x प्लस 40 मतलब 140 था सेल और प्राइस था y माइनस 20. y क्या ली थी 120. सो 120 माइनस 20 दैट गिव्स यू 100 rupees. So that was your आंसर. ठीक है. ओके. नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट. अच्छा और क्वेश्चन है वो कर लो या तो ये कर लो. ओके. सो नाउ अ वॉल इज शोन बिलो 5 मीटर इन लेंथ 4 मीटर in height. Outer portion is with uniform width x. Painted with the central portion will be tiled. Total budget is 500 per meter square. Paint is 200 rupees. It is given 5,800. We have to find the value of x. x ढूंढना है. टोटल हमको दिया गया है 5,800. एरिया ऑफ टाइल कितनी होगी. अब देखो टाइल का जो एरिया होगा दैट विल बी हाउ मच. इट विल बी 5 माइनस 2x मल्टीप्लाइड बाय 4 माइनस 2x. करेक्ट. 4 5 और x ले रहे हैं हम. करेक्ट. इन टर्म्स होता है हम करेंगे लेंथ इनटू ब्रेड्थ. करेक्ट. इफ फॉर द सिंप्लीफाइड क्या मिलेगा आपको. यू विल गेट इट एज 20 माइनस 10x माइनस 8x प्लस 4x स्क्वायर. करेक्ट.
that will be equals to 20 minus 18x plus 4x स्क्वायर. ठीक है, इतना मिल गया. अब पेंट का एरिया. हम्म पेंटिंग का एरिया. टोटल एरिया टू पेंट कितना होगा? आउटर कितना? 5 into 4 है, वो तो पूरा मिल गया, मतलब 20. माइनस करेंगे हम ये ऊपर वाले से, दैट इज 20 minus 18x प्लस 4x स्क्वायर टाइल्स. करेक्ट. सो वी विल गेट 20 - 20, साइंस बदल जाएंगे, प्लस 18x -4x. 20 गया, वी विल गेट इट एज 18x -4x स्क्वायर. ठीक है, इतना मिल रहा है हमको. लेट्स सॉल्व इट फर्दर. आगे सॉल्व करते हैं, हमको क्या मिलेगा? टोटल हमको दिया गया कितना है? 5800 है. करेक्ट, 5800 है. टाइलिंग प्लस पेंटिंग का 5800 है. टाइल का प्लस एरिया ऑफ पेंट का करते हैं. ठीक है, तो कितना था? 500 और 200 है, राइट. सो लेट्स से दैट एरिया ऑफ टाइल इनटू 500 प्लस एरिया ऑफ पेंटिंग into 200 should give me 5800. ठीक है, बराबर इतना मिलना चाहिए हमको. अब एरिया ऑफ टाइल हमने जस्ट ढूंढा था, 20 - 18x प्लस 4x स्क्वायर है, इंटू 500. आई राइट द वैल्यूज क्विकली. ठीक है, तो ये आपका मिल गया. लेट्स से हम इन सबको 100 से डिवाइड कर देते हैं. लेट अस डिवाइड एवरीथिंग बाय 100. 100 से डिवाइड करते हैं और कैंसल्स करते हैं. जीरो दो दो गया, दो दो गया, दो दो जीरोस गए, 58 है. ओके, कर दिए कैंसिल आउट. तो हमको क्या मिलेगा? क्विकली राइट व्हाट वी विल गेट नाउ. सो सी, ये हमको आंसर आते डिवाइड करने से बाय 100 100 100. तो व्हेन वी डिवाइडेड, इतना हमको सॉल्व करके मिलता है. फर्दर सॉल्विंग के लिए लेट अस से 2x स्क्वायर -2x - 7x करेंगे मिडल टर्म स्प्लिटिंग से. करेक्ट, प्लस 7 मिलेगा हमको. हाउ? बिकॉज इसको हम लिख सकते हैं 2x स्क्वायर -9x प्लस 7, और इसको फर्दर सॉल्व करके ये मिलेगा. करेक्ट, दैट इज इक्वल टू 0. 2 बाहर ले लिया, x -1, तो x -1 इंटू 2x - 7 आपका आंसर आएगा. अब देखो, x विल बी इक्वल्स टू 1 मीटर. सो x की वैल्यू मिल गई एज 1 मीटर. ठीक है, लेट्स नोट कर देंगे. ये अभी ये देखो, आइसक्रीम कोन का क्वेश्चन. आई विल नॉट वेस्ट टाइम इन रीडिंग, यू कैन रीड द वीडियो. आई मीन पॉज द वीडियो एंड रीड इट. देखो, एक क्यूबिकल बॉक्स, एक कंटेनर है, उसमें आइसक्रीम भरी हुई है. फ्रॉम दिस फॉसेट वो आइसक्रीम निकलती है. कोन का डायामीटर, वो हाइट और डायामीटर दिया गया है. वी हैव टू फाइंड आउट हाउ मेनी डेजर्ट्स हम सर्व कर सकते हैं एक बॉक्स में से. ठीक है, एक बॉक्स में से हम कितना सर्व कर सकते हैं, दैट वी हैव टू फाइंड. दैट इज, हमको n आइसक्रीम सर्व करनी है. एन आइसक्रीम का कितना होगा? कितने आइसक्रीम बॉक्स में, बॉक्स में कितने आइसक्रीम है, उतनी एन आइसक्रीम बनेगी. दैट मीन्स n into volume of ice cream will be equals to volume of box, right? Correct. So volume of ice cream. Ice cream कितनी हुई? Ice cream will be nothing but cone. So 1/3 pi r square h. बॉक्स क्या है? क्यू बॉक्स. अच्छा सॉरी, हाँ, कोन की कैसे फाइंड आउट करेंगे? रुको, पहले कोन की वैल्यू विल बी हाउ मच. कोन को फाइंड आउट करने के लिए वी हैव टू टेक, और ये कोन जो है पूरा, और प्लस द हेमिस्फीयर ऑल्सो. सो 1/3 pi r square h will be equals to 2/3 pi r क्यूब, और टोटल सबका मिला के विल बी 1/3, सॉरी, प्लस पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 r. कॉमन ले लिया हमने चीजें, चीजें कॉमन ले ली. अब लेट्स फाइंड आउट. 1/3 पाई की वैल्यू उन्होंने बोली है 22/7 लो. रेडियस कितना होगा? रेडियस इट इज गिवन 7 इज द डायमीटर. रेडियस विल बी 7/2 into 7/2. Okay, into 12 plus 2 times 7/2. ये 2 2 कट गया, 7 7 कट गया, पूरा कैलकुलेट करो, you will get it something as 11 into 7 into 19 by 3/2. इसको as it is run. Let it be as it is. ठीक है, अब देखो अगले पार्ट में what will we get. एन फाइंड आउट करने के लिए we have to find n ना, कितनी आइसक्रीम का होगा. सो बॉक्स का वॉल्यूम डिवाइडेड बाय कोन का वॉल्यूम विल गिव. कोन तो मिल गया, बॉक्स की वैल्यू कितनी होगी? एल बी एच. एल बी एच कितना है? 40 30 115. करेक्ट, सो दैट मीन्स इट विल बी इक्वल्स टू 40 into 30 into 115 divided by 11 into 7 into 14. 14 था ना? No, 19 था, sorry, 19.
और जो ऊपर चले जाएगा डिनोमिनेटर इट विल बिकम इंटू 3 इंटू 2। इसको फर्दर सॉल्व करोगे यू विल गेट इट एज अप्रोक्सीमेटली 565। सो 565 इज योर अप्रोक्सीमेट आंसर। ठीक है। अब देखो अब ये वाला क्वेश्चन कर लो या तो ये वाला कर लो। ओके दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन है ये। ओके इन दिस वन इट इज गिवन कि एक कॉलोनी में क्यूबॉइडल वाटर टैंक जाता है। दो क्वेश्चंस है कितनी कॉलोनीज एक टैंकर से भर पाएंगी और अगर एक टैंकर 3 कॉलोनीज में जाएगा उसके बाद 400 लोगों को एक मटके में पानी देगा। सो हाउ मच विल बी द वाटर सप्लाई। ठीक है ये फाइंड आउट करना है हमको। देखो रेडियस दिया हुआ है उन्होंने 42। ये मटके का रेडियस 42 है इसको कन्वर्ट करके लिख देंगे हम 21 सेंटीमीटर रेडियस होगा। करेक्ट। सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है लेट अस फाइंड फॉर दिस वन। सिलेंडर का वॉल्यूम कितना पाई आर स्क्वायर एच। सो पाई आर कितना होगा 2 मीटर है। सो 1 square into h 70 that becomes 220 मीटर क्यूब। 220। अब इस क्यूबॉइड का फाइंड करते हैं। इस क्यूबॉइड का फाइंड आउट करेंगे तो क्या एल बी एच 3 इंटू 2 इंटू 7 कितना आएगा 42 मीटर क्यूब। ठीक है अब ये फर्स्ट वाला सॉल्व करते हैं। हाउ मेनी कॉलोनीज कितनी कॉलोनीज भरेंगी। वी हैव टू मल्टी जितना सिलेंडर में है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब हमको देगा। दैट मीन्स 220 by 40 तो अप्रोक्सीमेटली आपको 5 मिलेगा। सो 5 कॉलोनीज का काम बन जाएगा उससे। ओके अब नेक्स्ट बोलते हैं वो लोग कि टैंकर सप्लाई करते हैं 3 कॉलोनीज को और 400 लोगों को उस मटके में। तो कितना होगा। दैट मीन्स फॉर द सेकेंड वन लेट्स गो ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है अब मतलब 3 कॉलोनीज को दिया। ठीक है 3 कॉलोनीज को दिया प्लस 400 लोगों को दिया इन द मटका। ठीक है मटके में दिया। दैट मीन्स व्हाट वी विल डू 3 इंटू कॉलोनीज मतलब वॉल्यूम ऑफ क्यूब करेंगे हम। सॉरी आपका जो क्यूबॉइड है करेक्ट प्लस 400 इंटू मटका क्या है इट विल बी नथिंग बट 4/3 पाई आर क्यूब। पाई आर क्यूब 21 कितना था वो यूनिट लेट मी चेक। हाँ 21 सेंटीमीटर हमको मीटर क्यूब में लिखना है तो हम सबको 100 से डिवाइड कर देते हैं। सो आई राइट इट हियर। सो अब फर्दर जैसे सॉल्व करोगे 3 इंटू क्यूब का है 42 7 21 कट गया 3 कट गया व्हेन यू मल्टीप्लाई दिस इज व्हाट यू विल गेट। इतना मिला हमको। ठीक है इतना मिल गया। फर्दर कैलकुलेशन में यू विल गेट इट एज 126 प्लस 15.5 तो अप्रोक्सीमेटली 142 और 142 मीटर क्यूब विल बी आवर अप्रोक्सीमेट आंसर। सो दिस इज योर आंसर। अब चलते हैं हमारे सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे दैट इज दिस। ठीक है और ये फिगर दी गई है एससीपी के पैरेलल हमको प्रूव करना है कि पी क्यू टी एस ये वाला जो ट्रेपेजियम है उसका एरिया इज 1/2 ए प्लस बी एच। ठीक है सो एरिया पी क्यू टी एस का पी क्यू टी एस का कितना इक्वल होगा। पी क्यू आर पूरा ट्रायंगल से हम एस टी आर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वी विल गेट इट। करेक्ट। सो हमको प्रूव करना है। सो लेट अस से पी क्यू आर ट्रायंगल पी क्यू आर माइनस ट्रायंगल एस पी आर का एरिया। सो पी क्यू आर का कितना है 1/2 इंटू बी इंटू एच माइनस एच सॉरी प्लस एच। करेक्ट। सब्ट्रैक्शन में 1/2 इंटू ए इंटू बिग एच। लेट अस से हम एक ये बना लेते हैं एक एल्टीट्यूड बना लेते हैं। So exactly what we will get ये सारे बन जाएंगे 90 डिग्रीज। करेक्ट। सो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग। अब देखो h हम कहाँ से ढूंढेंगे। h के लिए कुछ तो हमको कॉमन लेना पड़ेगा। सो इसको हम इधर ही स्टॉप करते हैं इसको पॉज पे लेते हैं। ठीक है अगले स्लाइड पे जाके सॉल्व करते हैं। फॉर फाइंडिंग x h सॉरी लेट्स से पी क्यू आर एंड ट्रायंगल एस टी आर ये दोनों ट्रायंगल है। एंगल r इज इक्वल टू एंगल r आप देख सकते हो कॉमन है और as they both are this thing एंगल आर कॉमन है और फिर दिस एंगल आर इज कॉमन और साथ ही साथ हमारे एंगल पी और एस विल बी इक्वल बिकॉज दे आर करस्पॉन्डिंग। सो एंगल पी is equals to angle S corresponding. So what can we say? A similarities they both are equal. Correct? A similarities in the triangle are similar. अगर similar है तो उनके sides का ratio PQ by SC will be equals to RB by RA. RA RB क्या है? I'll show you here. Okay, I didn't write. So ये RA हो गया ये RB
B हो गया, ठीक है। R B हो गया. Now when we solve it further, what we will get is a PQ. We can write it in the form of capital H plus small h. By small h will give you what? It will give you the answer as B A. Correct? It will give you the answer as B by A. So B by A मिल गया. I'll quickly write and show you. So in short हमको क्या मिल रहा है कि this value of h is big H is H A minus sorry H A by B minus A. ये मिलता है, ठीक है। अब h की वैल्यू मिल गई, अब इसको हम पुट करते हैं। So we can write it as 1 by 2 into B into A H by B minus A, correct, B minus A प्लस एच, करेक्ट। ये पूरा ब्रैकेट में लिख दिया, -1/2 इंटू ए एच बाय बी माइनस ए, करेक्ट। ए एच यू हैव रिटन, राइट? एच ए ए एच इज द सेम थिंग, करेक्ट। ये लिख दिया। इफ यू सॉल्व इट फर्दर आपको क्या मिलेगा? 1/2 इंटू एच बाय बी माइनस, इसको फर्दर सॉल्व कर देना, ओके। बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू एच बाय 2b माइनस ए, करेक्ट, इंटू बी माइनस ए और ए प्लस बी, ठीक है। इफ यू सिंप्लीफाइड आपको वही आंसर मिल जाएगा, 1/2 ए प्लस बी इंटू एच। सो हेंस प्रूवन। अब ये लास्ट क्वेश्चन देखो, एकदम सिंपल है। लास्ट क्वेश्चन शोज अस कि पिरामिड स्ट्रक्चर ग्राफ दिया गया है, उसमें आपको बोला गया है कि यू हैव टू फाइंड द एवरेज। ये पार्लियामेंट में देखिए, कैन पॉज द वीडियो चेक इट, फीमेल कितने मेल्स कितने, द पार्लियामेंट एज द एज ग्रुप। तो आप पहले तो एग्जाम में एक टेबल ड्रॉ करोगे, ठीक है। एज कितनी है क्लास में, कैसे फाइंड आउट करोगे? 35 प्लस 25 डिवाइडेड बाय 2, 45 प्लस 35 डिवाइडेड बाय 2, तो x1 मिल गया, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या है? नंबर ऑफ फीमेल्स, इट इज द फ्रीक्वेंसी f1 ले लो। अभी x1 इंटू एफ एक्स आई एफ वाई क्या मिल जाएगा आपको? मल्टीप्लाई करो, टोटल निकालो। सिमिलरली डू फॉर द मेल्स ऑल्सो। अब हमको क्या ढूंढना था? हमको ढूंढना है अपना मेल। सर around your answer हमको we have to show how much more at an average, ठीक है, at an average. So you what you can use the summation करेंगे हम इन सबका, summation of f I x I divided by summation of f I, isn't it? So आगे चलते हैं हमारी स्लाइड पे, I'll show you. So for the number of females, how will we write? 4280 total है divided by 80. You will get approximate answer as 53.5 years है, ठीक है। Similarly for male कितना है? समेशन किया हमने, 27,980 मिला डिवाइडेड बाय 468। हम सॉल्व करेंगे, गेट इट एज 59.8 ईयर्स। अब दोनों का एवरेज निकालना है तो डिफरेंस करो, सो 59.8 माइनस 53.5 मिलेगा आपको 60.6.3। एवरेज निकाल के आई मीन राउंड ऑफ कर लो तो 6 आंसर है। सो द डिफरेंस बिटवीन देम इज 6 years. ओके, सो विद दिस स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आज का सेशन यहाँ पे समाप्त है। हमने सेक्शन ए बी सी डी कर लिया। अगला सेशन शॉर्ट सेशन होगा बिकॉज हम केस स्टडी डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करो चैनल को। आई विल बी सीइंग यू सून, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।